Good morning, students. In our previous class, we have studied distance formula, application of distance formula, and today we will start derivation of distance formula. Okay. Now, suppose on this Cartesian plane, I have taken two coordinates A and B. We need to find out distance between A B. This distance we have to find out. In last class, I told you we can find this distance with the help of distance formula. Okay. So let me tell you how to derive this formula. That coordinates of point AB x1 y1 and coordinates of point B x2 y2. Now see, it is up to you only beta कि you want to take x1 y1 as this coordinate or that one. आपकी मर्जी है. अगर आप इसको x2 y2 लेते हैं और इसको x1 y1 लेते हैं then no issues at all. ओके एक ही बात है. आपने चाहे इसको x1 y1 लिया या b वाले कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 लिया, कोई दिक्कत नहीं है. ओके नाउ वी नीड टू फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन ए बी. तो वही सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे जो कल अपने एग्जांपल में फॉलो किए थे. इन द सेम वे वी हैव टू डिराइव फॉर्मूला. सो व्हाट टू डू? फर्स्ट स्टेप इज ड्रॉ AC perpendicular on x axis. From this point A, we will draw perpendicular on x axis. AC is perpendicular on x axis. Okay. Similarly, draw BD also perpendicular on x axis. जैसे आपने A से AC परपेंडिकुलर डाला x एक्सिस पर, in the same way from this point B we will draw BD perpendicular on x axis. Clear? And AE we have to draw AE perpendicular on BD. अब हमने तीन परपेंडिकुलर्स डाल दिए. AC is perpendicular on x axis, BD is perpendicular on x axis, and third one draw AE perpendicular on BD. These things we did yesterday also in example. अब देखिए. Now have a look at this. Yesterday I told you we can conclude that we can say that ACDE is a rectangle. How we proved it yesterday? As angle ACD equals to 90 degree, angle CDE is also 90 degree, and angle AED. These three angles are right angles in this quadrilateral ACDE. In a quadrilateral, if three angles are right angles, then automatically fourth will also be 90 degree. In a quadrilateral, if all the four angles are right angles, then that figure is rectangle. So from here we have concluded that आप यहाँ पे मेंशन करेंगे as angle ACD equals to angle CDE equals to angle AED equals to 90 degree. Therefore, angle CAE is also 90 degree by angle sum property of quadrilateral. Quadrilateral के angle sum property से we'll get fourth angle also 90 degree. If all the four angles of quadrilateral are right angle, then this quadrilateral is a rectangle. तो यहाँ से हम लोगों ने ये conclusion निकाला कि ACDE is a rectangle. And if this figure is a rectangle, then what can we say? We can say that opposite sides are equal in rectangle. It is property. So CD is equal to AE and AC is equal to DE. Opposite sides of rectangle. Opposite sides of rectangle are equal. So these things will come in use in derivation of distance formula. Now please have a look. कल हमने क्या किया था? मान लीजिए कोऑर्डिनेट्स 2, 3 है, तो जब आपने परपेंडिकुलर डाला तो ये पॉइंट कितना आया? 2 आया था. इन द सेम वे जैसे अगर ये x1 है तो यहाँ पे ये पॉइंट क्या आएगा? जो C पॉइंट है वो x एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है? x1 पर. इन द सेम वे जो कोऑर्डिनेट जो D पॉइंट है वो x एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है? क्या है ये? x2. आई बात सुनने? वो याद कीजिए कल क्या था? अगर ये 2, 3 है तो ये पॉइंट हो गया 2, अगर ये 5, 7 है तो ये पॉइंट हो गया
5, तो उस तरीके से अपने डिस्टेंस फाइंड किया था C और D के बीच में. In the same way here we will do. C is x1 and D is x2. We need to find out distance CD. Okay? If we will be able to get CD, तो अपने को AE भी मिल जाएगा वहां से, क्योंकि अपने को वर्क करना है इस राइट एंगल ट्राइंगल में, ताकि अपने को साइड A भी मिल सके. Okay? Now have a look. Let this point is O. Now see here. OC is equal to x1 units. OC, this OC is x1 units and OD is equal to x2 units. OD is x2 units. This OC is x1. This whole OD is x2. So, what will be the distance between C and D? This distance will be OD minus OC. अगर आप इस पूरे OD में से OC डिडक्ट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा CD, isn't it? तो we need to find out CD. यहाँ से आपको मिलेगा CD is equal to OD minus OC. That means OD पूरा कितना था x2 minus OC कितना है x1. तो ये आ गया x2 minus x1 units. Got it? OC is x1 units, OD is x2 units. So CD फाइंड करने के लिए आपने पूरे OD में से OC डिडक्ट किया तो ये मिल गया आपको x2 minus x1. ओके, अब इन द सेम वे वी हैव टू फाइंड आउट BE आल्सो. अब देखिए जरा, जितना CD है उतना AE है, ऑलरेडी वी हैव प्रूव्ड है. तो CD is equal to AE, दैट मींस आपको AE मिल गया x2 minus x1. Here already we have mentioned both sides are equal as opposite sides of rectangle are equal. तो यहाँ से आपने लिखा CD is equal to AE, which is equal to x2 minus x1 units. Proved above you can write. Okay, ये अपने काम आएगा. Now in the same way, similarly, अब ये देखिए, if this coordinate is y1 here, then what about this? ये कितना आएगा? y1 आएगा ये पॉइंट, है ना? On y axis it will be y1. और यहाँ देखिए it is y2, तो यहाँ से जो ये डिस्टेंस आएगा ये कितना आएगा y2. Now please have a look. अगर ये y1 है तो ये AC कितना होगा? ये भी तो y1 ही होगा. ये कितना होगा? पूरा y1. And AC and DE both are equal. Just now we have proved है. तो अगर ये y1 है तो ये AC भी y1 है और DE भी y1 है. Got it? आगे देखिए, अगर ये डिस्टेंस पूरा का पूरा ये डिस्टेंस आपने निकाला y1 है, ये पूरा डिस्टेंस कितना है? y2. अगर ये पूरा डिस्टेंस y2 है तो यहाँ BD में ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा? y2. अब बताइए, can't you find out BE? आप BE फाइंड कर सकते हैं आराम से. We can find BE by BD minus DE. अगर आपने पूरे BD में से DE को डिडक्ट कर दिया तो आपको मिल जाएगा BE, राइट? तो here can be write similarly BE, we can find BE as BD minus DE. BE में से अगर आप DE सब्ट्रैक्ट करेंगे, वापस देखिए BD पूरा कितना हो गया? y2, बिकॉज ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ था y2. ये y2 का मतलब ये पूरा कितना है? y2. अगर ये डिस्टेंस y2 है तो ये भी पूरा कितना होगा? y2. इन द सेम वे ये है x1 y1, तो y1 y कोऑर्डिनेट पे यानी कि y एक्सिस पे ये कोऑर्डिनेट कितना होगा? y1, यानी कि ये आपको गया होगा y1. ये y1 है तो AC भी y1 है. AC एंड DE बोथ आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, तो ये भी कितना हो गया? y1 हो गया. अब पूरे BD में से अगर आपने DE डिडक्ट किया, सब्ट्रैक्ट किया तो आपको मिल जाएगा y2 minus y1, यानी कि ये डिस्टेंस आ गया y2 minus y1. तो BE is equal to BD minus DE, y2 minus y1 units. I think समझ में आ गया होगा ये पॉइंट. तो इस तरीके से हमें क्या चीजें मिल गई? इन ट्राइंगल AEB टू साइड्स आर नोन टू अस नाउ. अपने पास दो साइड्स आ गई हैं, ठीक है? अब अगर दो साइड्स हम लोग को मिल गई है, देन कांट वी फाइंड आउट हाइपोटेन्यूज विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. Okay, now see, in triangle AEB
angle AEB is equal to 90 degree. So by Pythagoras theorem, what we will get? We will get AB square is equal to AE square plus BE square. Now keep all the values which are known to us. जितनी values अपने को पता है वो हम values रख देते हैं. तो AB square is equal to AE अभी आपने फाइंड किया x2 minus x1 whole square. BE आपने फाइंड किया y2 minus y1 whole square. After keeping values of AE and BE अपने को ये इक्वेशन मिल गई. स्क्वायर का स्क्वायर आपने एज इट इज लगा ही दिया. नाउ कैन वी शिफ्ट दिस स्क्वायर टू राइट साइड? इट विल कन्वर्ट टू अंडर रूट. स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा. सो AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. You can put plus minus sign here, but there is no need to put because in my previous class I told you distance can't be negative. Distance negative नहीं हो सकता. और अगर डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता तो स्क्वायर को आपने जब रूट में शिफ्ट किया तो प्लस माइनस लगाने की जरूरत भी नहीं है. इट इज आवर डिस्टेंस फॉर्मूला. ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला डेराइव हो गया. ठीक है, ये हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला जो आप लोगों को डेराइव करना था. इट्स सो सिंपल. आपको एनी हाउ राइट एंगल ट्राइंगल AEB की दो साइड्स का पता लगाना था, AE और BE, जो आपने फाइंड किया बहुत सिंपली. ये अगर x1 कोऑर्डिनेट है तो ये पॉइंट x1 होगा. ये अगर x2 है तो x एक्सिस पे ये x2 होगा. ये अगर y1 है तो ये वाला कोऑर्डिनेट, ये वाला पॉइंट y1 होगा. ये अगर y2 है तो ये होगा आपके पास y2. अब सिंपली फाइंड कीजिए. इस OD में से OC माइनस किया यानी कि x2 में से x1 माइनस किया तो CD मिल गया x2 माइनस x1. CD एंड AE बोथ आर इक्वल बिकॉज आपने प्रूव किया कि ये एक रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. तो CD एंड AE बोथ आर इक्वल. तो ये आ गया x2 माइनस x1. गॉट इट. इन द सेम वे ये आपको y1 मिला तो ACB कितना होगा? y1 होगा. और AC और DE दोनों इक्वल हैं. अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल सेम लिखा हुआ है आपने यहाँ पे. तो ये आ गया y1. ये पूरा y2 डिस्टेंस है तो ये पूरा भी कितना हो गया? y2. इस पूरे डिस्टेंस BD में से DE माइनस किया, y2 में से y1 माइनस किया तो ये मिल गया y2 माइनस y1. आफ्टर गेटिंग दीस टू साइड्स अपने राइट एंगल ट्रायंगल AEB में पाइथागोरस थ्योरम इंप्लीमेंट कर दी. हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. AB स्क्वायर को एज इट इज रखा बिकॉज़ वी नीड टू फाइंड इट. हमें इसकी वैल्यू पता नहीं है. ये वैल्यू आपने फाइंड कर ली, वो रख दी. इसकी वैल्यू फाइंड कर ली, वो रख दी. स्क्वायर था, स्क्वायर एज इट इज लगा. अब यहाँ पे आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाना. कभी a माइनस बी होल स्क्वायर खोल दो, इसको नहीं खोलना. आपको इसको एज इट इज रखना है. स्क्वायर को शिफ्ट करना आप यहाँ पे राइट साइड में वो आ जाएगा अंडर रूट में. ठीक है, प्लस माइनस नहीं लगा है क्योंकि डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव. सो दिस फॉर्मूला इज नोन एज डिस्टेंस फॉर्मूला जो अपनों को एक्सरसाइज 7.1 में यूज करना है. और बहुत सारे कंसेप्ट्स डिस्टेंस फॉर्मूला के इस चैप्टर में आएंगे जो आपको आगे फर्दर क्लासेस में बता दिया जाएगा. एक छोटा सा पॉइंट और बताऊंगी यहाँ में. हमने लिखा डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. कैन वी ऑल्सो राइट इट एज x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर. कैन वी से दैट बोथ द फॉर्मूलाज आर सेम? आंसर सेम ही आएगा या डिफरेंट आएगा? क्या कहते हो? ऑब्वियसली आंसर विल बी सेम. देखिए कैसे. x2 माइनस x1 होल स्क्वायर है. सपोज अपन ये माने कि x1 इज इक्वल टू 4 एंड x2 इज इक्वल टू 7 ले लेते हैं. अब एक बार चेक कीजिए. x2 माइनस x1 7 माइनस x1 4 होल स्क्वायर. 7 माइनस 4 3 स्क्वायर इज 9. और यहाँ इस वाले फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो. x1 कितना है? 4 माइनस x2 कितना है? 7. 4 माइनस 7 माइनस 3 स्क्वायर इज 9. तो आई थिंक कोई फर्क नहीं है. सेम इज द केस विद y कोऑर्डिनेट्स. y कोऑर्डिनेट्स का भी वही केस है. आप क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर आ गया. अगर यहाँ स्क्वायर नहीं आता तो डेफिनेटली दोनों फॉर्मूलाज अलग अलग होते हैं. स्क्वायर आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है. दोनों फॉर्मूलाज आपने स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर लगाया है, या फिर आपने स्क्वायर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर लगाया. कोई भी दिक्कत नहीं है बेटा. बोथ द फॉर्मूलाज आर टोटली सेम. ठीक है. सो इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल प्रोसीड फर्दर. मैं आपको बताऊंगी वेयर टू अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला. और एक छोटा सा केस और बचा है जो अपन अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. थैंक यू.